let's talk about how to unlock anything and everything in your life. Today, I'm going to talk about strategies, habits, and mindset shifts that you can do to unlock your dream life. But first things first, you need to be very clear on what you want in your life. Because you literally cannot unlock anything in your life if you don't know what it is that you want. आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे हमेशा अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या लाइफ में. Like आप कहते हो कि मुझे पैसा चाहिए, but what do you need that money for? Do you need that money for travel? Do you need that money for studies? Do you need that money for a new place? Because you can't really get it if you don't know what that thing is. Like you need to be very specific about these things. And with that you also need to focus on your why. That why do you need that particular thing? Because जब आप अपने why से connect होते हो, अपने purpose से connect होते हो, क्यों आपको वो चीज़ चाहिए? It will give you a purpose. It will actually motivate you to take aligned actions. And with that you also need to focus on the why of it. Why do you want that certain thing? वो क्या करेगा? क्या changes लाएगा आपकी life में, आपके अंदर कि आपको वो चीज़ चाहिए? Because once you connect with your why, motivation अपने आप आएगी aligned action लेने के लिए. और जब आपका why clear हो जाएगा कि क्यों आपको वो चीज़ चाहिए, then you will work on your mindset, abundance mindset. And then you have to believe that there is enough happiness, enough money, enough resources in this world for everyone, including you, because you are literally in this world. आप कभी भी notice करना, most of the people who do not have any dreams, who have not achieved their dreams, or who are not rich, or who do not have money, including me, I would say, ठीक है? Because most of us we are living in that scarcity mindset, that lack mindset, कि हमें लगता है खुशियों की कमी है, पैसों की कमी है, चीज़ों की कमी है, but ऐसा actually में नहीं है. Everything that we see is abundant. It's just our mindset. ये बस हमें सिखाया गया है, हमारे दिमाग के अंदर डाला गया है कि everything is limited. It's actually नॉट. आप नेचर को देख लो, आपको लगता है नेचर कहीं से भी लिमिटेड है? नहीं है. अबंडेंट है. पैसा अबंडेंट है. छपता है पैसा यार. पैसा इज जस्ट अ पेपर. उसको हमने वैल्यू दे रखी है. वी आर जस्ट नॉट इन अलाइनमेंट ऑफ दैट मनी एनर्जी. Obviously it requires time to do that, healing to do that. बहुत चीज़ें लगती हैं उस अलाइनमेंट में आने के लिए, बट वो एक माइंडसेट है. जैसे ही आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आप लैक से अपने आप को विक्टिम ना मान के कि भाई मेरे पास तो चीज़ें ही नहीं है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, खुशियाँ नहीं मिलती, मुझे प्यार नहीं मिलता. दिस इज lack mindset. Because when you get aware of it that you are a victim of this lack mindset, ठीक है, आप इससे बाहर आने की कोशिश करोगे और वहीं तक पहुंचना है आपको. अभी उसके बाद का काम बाद में करेंगे, बट पहले माइंडसेट ये है कि आप समझ जाओ कि आप हो इस ट्रैप में. जब भी ये थॉट्स आपके दिमाग में आए कि मनी डजंट कम टू मी इजीली, लव डजंट कम टू मी, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दीज थॉट्स कि भाई ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद स्टार्ट इरेजिंग देम, और अगर इरेज नहीं कर पा रहे, करेक्टिंग देम, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स हैं. इसको करेक्ट करो पॉजिटिव थॉट्स से, रिप्लेस कर दो. जब ये थॉट्स आ रहे होंगे तुम समझोगे ओके ये थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना. अब तुम ऐसा नहीं सोचोगे, you'll start replacing those negative thoughts with the positive ones. Because जो तुम अपने आप से बातें करते हो, अपने आप से कहते हो, वो spells हैं. Words are literally spells. They're nothing else. It's not woo-woo. ठीक है, हम स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पर भी स्पेलिंग सीखते हैं ना. That is what it is. Because when you're talking to yourself, you're literally putting a spell on yourself. Imagine कोई तुम्हारे पास आता है and that person is like, you're kind of ugly. तो थोड़ी देर बाद क्या आप मिरर के सामने जाओगे, अपने आप को चेकआउट करोगे और बोलोगे, am I really ugly? Because that person said that to me and that idea is now planted in my head. And if you're doubting yourself that if you're ugly or not, that person has planted a seed in your mind. सिर्फ कुछ शब्द बोल के वो आपके दिमाग में बैठ गया अब. Because you have always been insecure about your looks. Lack mindset. अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता ना और आपको पता है आप जो हो मस्त हो, तो कोई आपको कुछ भी बोल जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज हाउ पीपल आर. पीपल कास्ट अ स्पेल ऑन अदर पीपल बाय सेइंग शिट लाइक दिस, जो दूसरों के दिमाग में बैठ जाती है एंड देन दे ओवरथिंक अबाउट इट. दे गेट इनसिक्योर अबाउट इट मोर एंड मोर एंड मोर. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू टॉक अबाउट योरसेल्फ. तुम अपने आप से कैसे बात कर रहे हो, अपने आप को क्या कह रहे हो डेली बेसिस पे, सुबह शाम, बहुत मैटर करता है. बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स, योर इनसिक्योरिटीज, द थिंग्स दैट यू डू, योर डाउट्स, negative habits, whatever it is that you talk about, it keeps on growing. Unconsciously you're casting a spell on yourself कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरी insecurities हैं, ये मेरी mistakes हैं, और वो चीज़ें और बढ़ती रहती हैं. बिकॉज यू आर लिटरली फीडिंग इट, राइट, थ्रू स्पेल्स, थ्रू वर्ड्स. और वर्ड्स क्या करता है? वर्ड्स फीलिंग्स क्रिएट करता है. एंड इफ यू डोंट नो, वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बींग्स. हमारे अंदर से एक रेडिएशन निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं. तो आप किस वाइब्रेशन को फीड कर रहे हो, पॉजिटिव को, नेगेटिव को? जब आप अपने आप से नेगेटिवली बात करते हो हमेशा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं डम हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये वो, वही सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी. लोग भी आपको वैसे ही दिखेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज अ मिरर. जैसा आप अपने बारे में फील करोगे, वो बंदा तुम्हारे बारे में वैसा ही फील करेगा. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो, आई एम स्मार्ट, आई एम केपेबल, I can do this, money comes to me, love comes to me, I'm capable of love, then those things will grow. You will only attract people that will be able to provide you with those things. But first you have to give it to yourself. You have to come out of that victim mentality. You know what I'm saying? You see how everything is connected. Because literally जब हम ऐसे बात करते हैं, it just seeps into our subconscious mind. Imagine करो, एक बार आप रिलायंस फ्रेश में हो, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि यार यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्मार्ट, हैंडसम, यू नो, समथिंग लाइक दैट. अब मुझे बताओ आपके इमोशंस कैसे रिएक्ट करेंगे? दे विल एलिवेट. आप अपने बारे में इतना पॉजिटिव फील करने लगोगे, इतना अच्छा सोचने लगोगे, अरे वाह यार क्या बात है भाई, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया तो भाई सच ही होगा.
यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और जिस तरीके से उस बंदे ने वो कॉम्प्लीमेंट आपको डिलीवर किया है, उससे आपको और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा आपके इमोशंस एलिवेट होंगे. You will start to think good about yourself, positive about yourself, even though you were having a bad day. That bad day will turn into a good day at that point in. यही शब्द beautifully you can deliver it to yourself also. But for that you need to start believing those words to be true for yourself. वो चीज़ें जो तुम अपने आप को कह रहे हो वो believable भी होनी चाहिए. अब तुम ये बोलोगे कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, वो सच थोड़ा ना है. बट तुम ये बोलोगे that I know that I'm kind hearted. I know that whenever anyone seeks help, I try to help them. Obviously there are some nice things about yourself that you can talk about it. जिस चीज़ को आप enough credit नहीं देते. Obviously there are many things that are good about you. उसी को बोलने लग जाओ ना कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक स्ट्रीट डॉग दिखता है और तुम्हें दिख रहा है कि वो खाना ढूंढ रहा है, तो तुम उसको बिस्किट खिला दो. तुम्हें पता है तुम ऐसे बंदे हो जो ऐसा करता है ना. तुम किसी को रोड क्रॉस करवा रहे हो, किसी को ऐसी बेमतलब के फ्लावर दे रहे हो. यू नो दैट यू आर अ काइंड पर्सन, यू नो दैट यू आर हेल्पफुल, यू नो दैट यू आर देयर फॉर पीपल हु नीड्स इट. तो ये क्वालिटीज ही तो है. इसी को एम्पलीफाई करो ना. अपने आप को बताओ यार, ओके मैं ये करता हूँ. क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? व्हाई डोंट यू वांट टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ गुड पर्सन? एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, मुझे पता है, क्योंकि हमने ना अपने आप को इतनी खामियों से भर रखा है, इतना हम अपने आप को डिमीनिंग वे में देखते हैं ना कि हमारी जो बाकी अच्छी आदतें हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं. वो नहीं करना. अब जो चीज़ें नज़रअंदाज करी आपने, अच्छी बात है अपने बारे में, उन पे फोकस करना शुरू करो, उसी पे एलिवेट करो, उसी के शब्द बोलो दैट आई एम गुड इनफ, आई एम वेरी हेल्पफुल, आई एम ऑलवेज देयर फॉर पीपल हु नीड्स इट. दैट विल एम्पलीफाई योर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस अराउंड यू. दैट विल मेक यू मोर पॉजिटिव एंड दैट माई फ्रेंड विल शिफ्ट योर माइंडसेट. यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड. एंड यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट बाय करेक्टिंग योरसेल्फ व्हेन यू आर हैविंग अ नेगेटिव थॉट. जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा हो उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव से. शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट, बट जब तुम धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाओगे ना, तुम्हारे लिए ईजी रहेगा एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट में बदलने का. एंड टू हेल्प रीप्रोग्राम योर माइंडसेट, थोड़ा टाइम अपने साथ रोज स्पेंड करो, विजुअलाइज करने में स्पेंड करो दैट यू आर विजुअलाइजिंग योर ड्रीम लाइफ, कि वो कैसी दिख रही है और हाउ एम आई फीलिंग लिविंग इन इट. ठीक है, दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन इज. पर हम ये क्यों कर रहे हैं? सो दैट जो आपकी ड्रीम लाइफ के इमोशंस है ना, वो आपकी बॉडी में इंप्रिंट हो जाए, ताकि आपको पता चल पाए, आप महसूस कर पाओ कि ऐसा फील होता है अगर मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ. तो दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. एंड आफ्टर वी आर क्लियर ऑन व्हाट वी वांट, वी हैव शिफ्टेड आवर माइंडसेट, यू कैन टेक अलाइंड एक्शंस. बड़े सपने तब तक ही बड़े लगते हैं अनलेस एंड अनटिल यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स. लुक एट योर ड्रीम एंड रिवर्स इंजीनियर इट, कि अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं वहाँ कैसे पहुंच सकता हूँ. एंड देन जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप. तो उसके लिए आपको अपनी ड्रीम्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर स्टेप्स, इनटू स्मॉलर गोल्स जो अचीवेबल हो. दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग aligned action. The next thing is you're going to get very comfortable being uncomfortable. Think of it like a plant. A plant is like this big. उसमें क्षमता है पेड़ बनने की, बट वो यहीं पर खुश है. चाहे वो अभी प्लांट बन के कंफर्टेबल है, बट उसके नेचर में है पेड़ बनना. सो इट हैज टू ग्रो, इट हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन और द जोन दैट इट इज इन. वो एक प्लांट के जोन में जो है, पेड़ बनने के लिए उसको लाइक इट हैज टू गो थ्रू सम थिंग्स राइट विच आर नॉट गोना बी कंफर्टेबल एट ऑल. तो उस प्लांट को उस पेड़ बनने के लिए उस चीज से निकलना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर दैट इज नॉट गोना बी कंफर्टेबल एट ऑल. व्हाट डू यू थिंक? एंड यू नीड टू एम्ब्रेस दिस ग्रोथ एंड चेंज इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस and not be fearful of it. Like it's easy for us to make vision boards and plan out all of the goals that we are going to take action on and feel all of the things that I want in my heart, right? But not actually going and get them. I'm not taking any aligned action towards my goals. मैं बस सोच रहा हूँ, उनको महसूस कर रहा हूँ, feel कर रहा हूँ. That's not how it works. We live in a physical reality. Action is required. You need to show up every day, even when it's hard. I can't believe this is coming out of my mouth because I was not this person. मैं अपने dreams सोचता तो था, fantasize करता था उनके बारे में, but मैं कभी action नहीं लेता था. एंड नाउ दैट आई एम डूइंग इट, इट फील्स ग्रेट. कभी कभी मैं रात को 3 बजे बैठ के शूट कर रहा होता हूँ, क्योंकि अब आइडिया आया उसको भाई एग्जीक्यूट तो करना ही करना, नहीं तो आइडिया चला जाएगा दिमाग से. आई यूज्ड टू बी एग्जॉस्टेड आउट ऑफ माई माइंड. मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, इसमें मेरी शक्ल से पता चल जाएगा. या मैन, यू हैव टू शो अप, स्पेशली व्हेन इट्स हार्ड. यू लर्न दिस द हार्ड वे, बट आई फील लाइक व्हेन यू लव डूइंग समथिंग राइट, यू विल शो अप, यू वुड वांट टू शो अप. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट यार. जब तुम्हें वो चीज मिल जाती है ना जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, जिसमें तुम्हें काम करने में मजा आ रहा है, एक्शंस बहुत आसानी से आते हैं, जितना हमें लगता है कि नहीं आते होंगे. कभी कभी हाँ, यू स्लैक इन एवरीथिंग, बट यू नो दैट यू गोना गो बैक टू इट एंड यू गोना डू इट, गिव यू 100%. वट एवर इट इज दैट यू वांट इन योर लाइफ, यू शुड बी एबल टू वांट इट. यू नीड टू वांट इट more than your comfortable thing, if that makes sense. The next thing is surround yourself with the like-minded people, the right people who will support you, who have some थोड़ा similarity है आपके और उनके काम में. ऐसे लोगों से मिलो. अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ. अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है अभी कि आप नहीं वैसे वाले लोग ढूंढ पा रहे जैसे आप हो, या आप अभी अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, उस हिसाब से आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने बाद में. ठीक है, जब तक आपके पास नहीं है, आई वुड रेकमेंड अकेले रहो.
आसान नहीं होगा, बट इस अकेले रहने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का. एंड दिस इज माई फेवरेट थिंग टू से. आई एम टेलिंग यू ब्रो, I have been doing it for the past 3-4 months. I have been doing it like consistently. I'm all alone, spending all the time with myself. कभी कभी वो loneliness hit करती है, बट कोई बात नहीं, उसको हैंडल करना भी आना चाहिए. हर समय आपके पास लोग नहीं होते. और उसके बाद आई गारंटी यू, जबकि मेरी लाइफ में अभी ऐसा नहीं हुआ है, बट आई गारंटी that you will see in a year, 2 years, I don't know, you will see those like-minded people with me, and I would want the same for you. That's what I'm doing here. I want to build that community of like-minded people. Please, if you want to change yourself, your mindset, and everything about your life that you don't like, Instagram and YouTube is a big problem. They are feeding you with information that is not good for you. And surprising बात ये है कि आपने ही उन ऐप्स को बताया कि मुझे ये देखना है, क्योंकि आपने उसमें अपना इंटरेस्ट शो करा है, चाहे वो जो भी हो, कुछ भी हो. इफ इट इज नॉट एलिवेटिंग यू और योर माइंड, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां जाकर सर्च करो जो जो चीजें तुम्हें सीखनी है, इंटरेस्ट आता है जिन चीज में, जो तुम्हारा माइंड एलिवेट करेगा. थोड़े टाइम में एल्गोरिथम वो समझ जाएगा और वही चीजें तुम्हारी फीड में आने लग जाएंगी. देन कंज्यूम दैट, लर्न दैट एंड एक्ट ऑन इट. लाइक मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, उस पर सारी स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो जो मेरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हेल्प करती हैं, सिर्फ वही लोगों को फॉलो करा हुआ है मैंने, और वही फीड पे आता है और कुछ नहीं आता. दिस इज हाउ यू क्रिएट पॉजिटिविटी फॉर योरसेल्फ. दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज एप्स in your benefit. So please do yourself a favor and always surround yourself with the right people, right things, right stuff, right ideas, because you are the one who keeps yourself stuck by staying in the wrong environment. Because a tropical plant is not going to grow in a cold ass place, right? That's what it is. So the last thing I want to talk about is letting go of the how. कि कैसे होगा, मैं actions ले रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कब होगा, कैसे होगा. कोशिश करो यार कि इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना. There are times when I question my hard work towards YouTube, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ग्रो क्यों नहीं हो रहा. एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू लर्न कि मुझे नहीं सोचना इस बारे में. इससे एक श्लोक क्या आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. एज ईजी एज दैट. बट इतना जितना ईजी लगता है ना सुनने में, उतना ईजी होता नहीं है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच रेजिस्टेंस कि यार हो जाए, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, उसको ये करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा. वट एवर यू आर डूइंग, उसमें वो फील करो कि तुम्हें कैसा लगेगा. एंड देन जैसे मैंने बताया कि विजुअलाइज करो, वो फील करो जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ जैसे दिखेगी, जैसा फील होगा उस टाइम पे तुम्हें. दैट्स योर कार्य, दैट्स योर कर्म, दैट्स वट यू हैव टू डू इन द प्रोसेस ऑफ दिस, सो दैट वट एवर यू वॉन्ट मैनिफेस्ट इन टू योर लाइफ वन डे. सोच के देखो, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप ऑर्डर देते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपका ऑर्डर आएगा. आप बार बार किचन में नहीं जाके देखते कि शेफ काम कर रहा है मेरे डिश पे या नहीं कर रहा. आपको पता है कि 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद आप नहीं परवाह कर रहे कि वो कब आएगा, क्योंकि आपको पता है, यू आर सो सर्टेन कि वो आएगा जरूर. That's what trust is. That's what faith is that we need to have in the universe when we are working on something. You know what I'm saying? And this is one of the hardest thing you're ever gonna have to do, is that letting go, surrender yourself. मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना difficult है ना, मैं खुद ही नहीं कर पाता ढंग से यार, तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं. But it is what it is. Like you have to keep on working it unless and until you have developed the faith of an Iron Man. कि अब मुझे पता है कि वो होना ही होना है. और ये माइंडसेट आप पता कैसे श्योर कर सकते हो, व्हेन यू आर टेकिंग अलाइंड एक्शंस एवरी डे, व्हेन यू आर शोइंग अप एवरी डे, चाहे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, यू आर शोइंग अप एनीवे. दैट्स हाउ यू नो, दैट्स हाउ यू बिल्ड योर ट्रस्ट, दैट्स हाउ यू लेट गो ऑफ दैट. एंड जब आप ऐसा करते हो, यू आर ऑल्सो बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू ऑल्सो बिलीविंग इन योर सेल्फ. एंड एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स, कि आप अपने पे ट्रस्ट करो, अपने पे बिलीव करो कि आप पा सकते हो, आप अचीव कर सकते हो. That's it. Because when you are stressing too much about something, pulling that away from yourself, आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको कोई पसंद है, बट आप बार बार उसके पास जा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, ये है वो है, मुझे बताओ मुझे लाइक करते हो नहीं करते, ये वो, यू आर इवेंचुअली पुलिंग दैट पर्सन अवे. वो तुम्हें लाइक तो क्या, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी. जितना तुम कोशिश करते हो ना पकड़ने की चीज़ों को, इट डजंट वर्क. छोड़ दो. अगर उस चीज़ को तुम्हारी लाइफ में रहना होगा, वहाँ पर रहना होगा, तो जब तुम छोड़ोगे ना, वो वहीं पर होगी. It will not pass you by, it will not go away from you, because that is meant for you. You know what I'm saying? तो तभी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अलाइंड एक्शंस इन द राइट प्लेस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जहाँ पर तुम्हें एक्साइटमेंट आ रही है, जहाँ पर तुम्हें मजा आ रहा है रोज काम करने में. एंड इफ यू आर अ लेजी पर्सन, बट ये जो काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हें उठा रहा है बेड से रोज, घंटों घंटों तक काम करवा रहा है, दैट इज द थिंग फॉर यू. वहीं पर एक्शन लेते रहो, उसी जगह पे. इट विल बी फ्रूटफुल वन डे. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. मजा आ गया. अगर आप वीडियो के आखिर तक बने हो, यू आर द जी. अगर आप वीडियो के आखिर तक बने हो, you are the G, ठीक है. Well, if you do like the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such content, and I'll see you guys in the next one. Peace.